करो आरोप कैसे लोग जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ आशीष मांगे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे. For sparing his time, and I would like to thank all students and staff on this occasion. I remember Sayyid Zulfiqar Hashmi, first of all. He is no more with us. Last time we celebrate with him. And further, I would like to take my place, Mirza Rahmatullah Beg. Republic Day to one and all. This is 73rd Republic Day that we are celebrating, and it's really honor to lead a college with such a talentful students. I'm really happy to see you again in this dais, and I am really proud every time I see you. And I think this college will be thriving in a very upward manner. Coming, we shall see many changes due to Corona. We have been lacking in many departments. As if I was saying last year also, I thought this year Corona would have been gone, but unfortunately there have been some dent in your studies. Coming year it will be fulfilled with whatever needs are required by college and universities and by the students. And I think this celebration is of a day where Constitution was given to us. It's the greatest gift that we could have got, and I don't want to take much time. I just want to congratulate and concentrate on your studies, enjoy the stuff what you are doing, and I'm really proud of you people, and may NPS reach the goals that I'm thriving for, I'm aiming for. Thank you one and all. Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. I am studying in UKG class. Today is 26 January. At first, I wish you all are very happy Republic Day. We are celebrating our 73rd Republic Day. Thank you. Assalamu alaikum. A very pleased morning to Honorable Chief Guest, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. Myself Sadia. Today I am here to speak on Republic Day. Today is 26 January, our Republic Day. A day filled with patriotism, great affection and respect towards our motherland, India. These feelings awakens in every Indian minds.
First of all, I wish you a very happy Republic Day. Republic. What is Republic? What is the meaning of Republic? The word Republic is derived from the Latin word res publica, which is related to the people. Republic is something that is connected to the people. It is the system in which the country belongs to people, the government belongs to people. And the democracy is the greatest means for restoring this kind of system. And the Lincoln Sir has explained this system in very simple terms, as the democracy is the for the people, of the people, and by the people. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट सर, चेयरमैन सर एंड ऑल यंग माइंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जिस मौजू के तहत मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है, कुछ बातें रखनी है, वो बड़ा ही कीमती उन्वान है, बड़ा ही अहम उन्वान है. आज मैं आपको डेमोक्रेसी और मुल्क की तरक्की, जमहूरियत में हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, उस चीज़ के हवाले से कुछ अहम बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँ. सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे. न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे, ये सबका वतन है बचा लो इसे. अगर हम हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में बात करें तो ये सफ़र एक तवील जद्दोजहद से पूरा हुआ. अगर हम तारीख़ को उठाकर देखते हैं तो तारीख़ इस बात की शहादत पेश करती है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए और तिजारत के मकसद के तहत वो हिंदुस्तान में आए और इन्होंने हिंदुस्तान को एक अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बचाने के लिए 1757 में पहली जंग लड़ी, जिसको प्लासी की जंग कहा गया, जब वहाँ पर एक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी पेश की. फिर उसके बाद देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों का गलबा बढ़ता गया और अंग्रेज़ इस मुल्क पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब अंग्रेज़ों के सामने एक रुकावट बनकर फिर से 3 लोग खड़े हो गए. बैटल ऑफ बक्सर में जो 1764 में हुई, सिराजुद्दौला के बाद शाह आलम दुवम और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और शाह आलम दुवम और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों का फिर से मुकाबला किया. नतीजा ये होता है कि इनकी मजमूई कोशिश के नतीजे में भी वो अंग्रेज़ों की चालबाजियों का मुकाबला नहीं कर सकते और वो हार जाते हैं. फिर उसके बाद ये आज़ादी का सफ़र ऐसे ही थम नहीं गया. इन नाकामियों से हिंदुस्तानियों की हिम्मतें पस्त नहीं हुई. हिंदुस्तानियों ने उसके बाद 1757 में बगावत की. इसमें कोई एक मखसूस फ़िरक़ा शामिल नहीं था, उसमें हिंदू भी शामिल थे, उसमें मुसलमान भी शामिल थे. इन्होंने सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी जानों का कुर्बानी पेश की, जिसमें हम लोग बेगम हज़रत महल का भी नाम सुनते हैं, जिसमें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम सुनते हैं, जिसमें हम क्या है उस बगावत के जो लीडर थे बहादुर शाह ज़फ़र, इनका भी हम नाम सुनते हैं. इन्होंने कोशिश की हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए. साथ ही साथ अगर हम इसको और मज़ीद समझेंगे तो उसके बाद हमारे ऐसे रहनुमा यहाँ पर जन्म लिए जिन्होंने क्या हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान किया. मेरे और आपके बाबा व अजदाद ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए इतनी कुर्बानी पेश की कि अगर वक्त पड़ा तो जान की कुर्बानी दी, अगर माल की कुर्बानी देने का वक्त आया तो माल की भी कुर्बानी दी. इस तरह से हमारे और आपके बाबा व अजदाद ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद किया. और आखिरकार वो दिन आया कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बरतानवी हुकूमत के चंगुल से आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान एक आज़ाद एक जमहूरी मुल्क बन गया. लेकिन आज तक हमारे पास कोई एक क़ानून नहीं था, हिंदुस्तान के अंदर अपना कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था. तो फिर हिंदुस्तान को एक रूल और एक अच्छे से दस्तूर और एक अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी. इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके कुछ टीम के 7 मेंबर्स टोटल उन्होंने एक कमेटी बनाई और इन्हीं के
कोशिशों और काविशों के नतीजे में तकरीबन क्या है 2.5 साल का कुछ अरसा, 2.5 से 3 साल का अरसा है। इसमें क्या है बहुत मेहनतें मशक्क़तें करने के बाद हमारे मुल्क का आइन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को क्या है लिखा गया और तकरीबन 26 नवंबर 1949 में हमारे मुल्क का दस्तूर बनकर तैयार था। लेकिन उसको नाफिज करने के लिए जो डेट मुकर्रर की गई वो 26 जनवरी 1950 की तारीख़ थी। उस दिन से आज तक हमारे मुल्क में हमारे मुल्क का दस्तूर क़ायम है और हम लोग उसी पर अमल करते हैं। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर ये लाजिम है कहीं पर भी अगर आप इंडियंस हैं तो आपको क्या है ये क़ानून मानना होगा और इसी के मुताबिक अपने तमाम फ़ैसले करने होंगे। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो जद्दोजहद आज़ादी कोई छोटा काम नहीं था। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद करना एक बहुत बड़ा काम था। इस मिशन के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाई ने, सभी ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ, तब जाकर हमें आज आज़ादी मिली। आज़ादी अधूरी नज़र आती है जब हम बग़ैर दस्तूर के अगर ज़िंदा रहे। तो हमें लोगों को एक अच्छा डिसिप्लिन के अंदर रहने के लिए और अपने हुकूक़ और अपने राइट्स को मालूम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया, जिसके नतीजे में हमें बोलने की आज़ादी, मज़हब पर चलने की आज़ादी मिली, जिसके अंदर सभी को इंसाफ मिला। किसी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत होनी है तो इसी दस्तूर के ज़रिए से होनी है। तो इसी के ज़िमन में हम लोग आज खुशियाँ मनाते हैं कि इस मुक़द्दस दिन में हमारा क्या है, इस मुल्क का क़ानून और हमारा आइन क्या है वजूद में आता। साथ ही साथ आज देखेंगे अगर मौजूदा मुल्क के हालात पर अगर हम गौर करेंगे, हालात इतने ख़राब हैं कि आजकल हमने नफ़रतों का असर देखिए, नफ़रतों का असर देखिए, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। ये शाखें, ये पत्ते, ये पेड़, ये सब परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये शाखें, ये पत्ते, ये पेड़ परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। देखिए इस तरह से अगर हमारे मुल्क में जो हालात बरपा हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये देखकर तो सूखा मेवा भी हैरान हो गया कि नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बेचारा नारियल, ये मेरा बेचारा तरबूज, ये किसके हिस्से में जाएगा? ये ऊपर से तो मुसलमान है लेकिन अंदर से तो हिंदू रह जाएगा। बहरहाल हम लोग देखेंगे तो कलर की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर अगर हम मुतफ़र्रिक़ रहेंगे, फ़िरक़ों में बटेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क अगर तरक्की कर सकता है, मुल्क में अगर खुशहाली आ सकती है तो हिंदू और मुसलमान को, सिख को, ईसाई को मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की कामयाबी के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ें। इन्हीं जज्बात के साथ, इन्हीं ख़यालात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारुफ करवाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आप पाबंद बन के चलो उस अल्लाह की जिसकी शहंशाही है। उस अल्लाह ने मुझे बनाया, उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो। ने कुरान आँखों का नूर दिया, ज़बान में बोल दिया, जिस्म में ताकती, अक़ल को समझने के लिए और साथी उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो। ने कुरान को उतारा, ने धरती को बिछाया, आसमान की फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है, जमीन का फर्श मेरा अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरा अल्लाह की बादशाही है, तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, दरख्तों के फलों के देखो देखो खुशबू, फलों में मिठास, तब फलों के ऊपर छील के बताओ एक अनाज मेरे रब के खुदाब का शाकार है। दाना दाना जरा लेट के बताओ कि फिर उसको पर्दा मेरा पीट के बताओ, इसकी पेंटिंग करके बताओ, इसको देखे भर के दिखाओ, गाय के थान से दूध निकलता देखो, हिरन के नाफे में मोश, सांप के मुंह में जहर और मच्छी के मुंह में शहद, आदम की सारी नस्ल का मालिक, 2 पाँव पे चलने वालों का मालिक, 4 पाँव पे चलने वालों का बादशाह, हवा की मखलूक, जमीन की मखलूक, रहने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, चिपकने वाले, फाड़ने वाले, दसने वाले, सब पर मेरे अल्लाह की शहंशाही है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहता सरा व इन तजल मिन क़ौली इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। वो कौन है? वो अल्लाह है। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದಿನ. 2022ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನವರಿ 26, 2022ರಂದು
73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನವು ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ತರ ಗಣರಾಜ್ಯ ದೇಶವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम, मेहमानात खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक खुद मुख्तसर मुल्क है। हिंदुस्तान ने 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी हासिल की, जिसे हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान का ऐन 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को नाफिज हुआ, लिहाजा हम हर साल इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। इस साल 2022 में हम हिंदुस्तान का 73वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। जमहूरिया का मतलब ये है कि मुल्क में बसने वाले लोगों की आला ताकत और सिर्फ अवाम को ही हक हासिल है कि वो अपने नुमाइंदों को सियासी रहनुमाई की हैसियत से मुल्क को सही सिमत मिलने के लिए मुंतखब करें। लिहाजा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां अवाम अपने क़ादाइन को सदर, वज़ीर आज़म वग़ैरह की हैसियत से मुंतखब करते हैं। हमारे अजीम हिंदुस्तान आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान में पूरन सूरज के लिए बहुत जद्दोजहद की है। इन्होंने ऐसा किया तो हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें बग़ैर जद्दोजहद के रहें और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएं। हमारे अजीम हिंदुस्तान को रहनुमाओं और आज़ादी पसंदों का नाम महात्मा गांधी, अशफाक़ुल्लाह खान, भगत सिंह खान, अब्दुल गफ्फार खान, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, टीपू सुल्तान वगैरह हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी मुल्क बनाने के लिए बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुंतकिल जद्दोजहद की। हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। हमें अपने ऐसे अजीम मौक़े पर याद रखना चाहिए और इन्हें सलाम करना चाहिए। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। आसलाम है उनको जिनके करम ये दिन आता है, खुशनसीब होती हैं वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के नाम आता है। खुदा हाफिज़, जय हिंद। Abhinandan, I am the Jet Fighter. I am Mirza Qudratulla Beg. I am police. I am Mohinda Karamchand Gandhi. I am the father of nation. Is Zahra Hashmi. I am Ambedkar. Educate, organize. Jai Bharat, Jai Bhim. इधर देखो सभी लोग, इधर देखो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे बैठे हुए हमारे डिग्निटरीज़ जनाब मंसूर कादरी साहब, सदर मजलिस बिदर डिस्ट्रिक्ट, मेरे खालू और इस कॉलेज के प्रेसिडेंट जनाब मिर्ज़ा खुदरतुल्लाह बेग साहब और इस कॉलेज के चेयरमैन जनाब मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब, NPS कॉलेज, डिग्री कॉलेज और स्कूल का सारा स्टाफ, यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स और मेरे मासूम साथियों और मेरी पर्दा नशीन बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग मेरे से पहले आप लोगों के बीच में रहने वाले एक नौजवान साथी की स्पीच सुने, उन्होंने आपको पूरे डिटेल में ये बताया कि
हिंदुस्तान में ये दस्तूर कैसे लाया गया। आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फ्रेम हुआ और ये इम्प्लीमेंट कैसा किया गया और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। मैं अपने वक्त को ज़्यादा नहीं लेते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया। स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे हमारे इंजीनियर साहब जनाब मंसूर कादरी साहब बैठे हुए हैं, वो बेहतर जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। जब उनके पास कोई क्लाइंट आता है और ये कहता है कि मुझे अपना घर बनाना है, तो पहले अपने एक प्लॉट का साइज लेते, उसका एक मैप डालते, फिर उसके मैप के ऊपर बोलते कि ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन आपका घर तैयार करेगा, उसके लिए ये मटेरियल चाहिए और एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। उसी तरीके से ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का स्ट्रक्चर है और ये देश को स्ट्रक्चर दिया गया और इसके चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सारी पढ़ाई लंदन में कंप्लीट की। वो खुद एक बैरिस्टर थे और उन्होंने ये कमेटी को लीड करते हुए इसके अंदर डिफेक्ट्स और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स निकालते हुए ये स्ट्रक्चर तैयार किया। उसी की बुनियाद पे ये देश चलना है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। मगर आज हम लोग देख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिन ब दिन किसी ना किसी तरह इससे कमज़ोर किया जा रहा है। कोई पत्थर मार के कमज़ोर कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर उंगली उठा के कमज़ोर कर रहे हैं। मगर मैं ये बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ये देश चलने वाला है। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो रातें रात तैयार नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी मेहनतें थी, रिसर्च वर्क था, सारे चीज़ों को कंसिडर करके ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे कास्ट को कंसिडर करके ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसके अंदर 3 ऐसे चीज़ें हैं जिसका हम सबको, स्पेशली मैं यंगस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये 3 आर्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दें। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 जो है वो आपको राइट टू इक्वालिटी सिखाता है। राइट टू इक्वालिटी क्या एक्सप्लेन करता है कि इस देश में किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई मेल फीमेल नहीं है, कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आप सब इस देश के कानून के सामने आप सबको एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आपको राइट टू फ्रीडम सिखाया जाता है। राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू स्पीच, राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू एजिटेट, राइट टू यूनियन and right to roam around freely all over the country। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप बीदर से हैदराबाद जा रहे हैं तो आपको ये नहीं बोल सकते कि आप नहीं जा सकते। थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, पेंडेमिक था उसलिए आपको रेस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं, मगर आपको रोकना ये मुनासिब नहीं है क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। ज़बरदस्ती आपके साथ कोई नहीं कर सकता। और बाद में आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है आप लोगों को इलीगल डिटेंशन से प्रोटेक्ट करता है। इलीगल डिटेंशन वर्ड यूज़ किया गया है, इलीगल डिटेंशन। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग जाएं अपने नौजवानों से ये बोले कि ये 3 आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। जब भी आपको कोई मसला आएगा, आप ये 3 आर्टिकल पे अगर बात करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दूर ठहरेगी। पुलिस रहने दीजिए, पॉलिटिशियंस रहने दीजिए या आम आदमी रहने दीजिए, हम सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है।
और दूसरी बात, हम लोगों को आपस में ये डिसाइड करना है कि हम इस देश के प्रजा हैं या नागरिक हैं। अब ये दो चीजों में मैं आपको डिफरेंसेस समझाऊंगा, प्रजा और नागरिक। प्रजा जो होती है वो अपने राजा की बात मानती है। कल अगर इस देश में कोई राजा आ गया और ये बोला कि आप लोगों को अपने घर में ये खाना नहीं वो खाना है, ये पहनना नहीं वो पहनना है, तो आप प्रजा हैं, आप खामोशी से उसकी बात सुनना ज़रूरी होगा। जब आप इस देश के नागरिक हैं तो ये बात याद रखिए, आपको इस हुकूमत से पूरा पूछने का हक है, क्योंकि ये हुकूमत दिलाने वाले आप लोग नागरिक हैं। तो बाबा साहब ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया और इसको हम लोग हिंदुस्तान में, भारत में अडॉप्ट किए और ये माने कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, तो हम इस देश के नागरिक हो गए। नागरिक रहने के बाद आप लोगों का पूरा हक है कि आप इस देश के हुकूमत से हमेशा सवाल कर सकते हैं। अगर आप प्रजा हैं तो बिल्कुल नहीं। आप बर्मा चले जाइए, वहाँ राजाओं की हुकूमत है। आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, वहाँ राजाओं की हुकूमत है। वहाँ आप नहीं सवाल कर सकते। वहाँ का किंग अगर डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होना है तो होना है, वहाँ पे प्रजा क्वेश्चन नहीं कर सकती। मगर इस देश में बाबा साहब ने आप लोगों को एक हथियार दिया है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके आप इस देश के प्रधानमंत्री को भी सवाल कर सकते हैं कि आप ये क्यों गलत कर रहे हैं, क्योंकि कल उसको फिर प्रधानमंत्री आपको ही बनाना है। और ये आपके वोटिंग राइट्स है। और वोटिंग राइट्स 18 ईयर्स, जैसे कि मैं ज़्यादा फ़िलहाल करंट सिचुएशंस पे हम लोग आज न्यूज़ चैनल्स में सुन रहे हैं कि नकाब को लेके उड़पी के गवर्नमेंट स्कूल में एक इशू उठ गया है कि आप लोग नकाब पहन के नहीं आ सकते हैं। ये सीधा सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे वार है। आपको क्या खाना है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे वार है। तो जब भी आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी बदमाश हरकत हो रही है, कोई शरारत हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ उठिए और आवाज़ उठाइए। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैंने भी लंदन से पढ़ाई की, मैं खुद एक बैरिस्टर भी हूँ, मगर आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज अपने अंदर रखिए, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत है। आज हम 73rd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे पुराना हो रहा है, मेरे नॉलेज में कादरी साहब ऐसा दिख रहा है कि ये दिन ब दिन नया हो रहा है, ये पॉलिश हो रहा है। लोग इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 40 साल 50 साल पहले चले जाते तो लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी, मगर अब जानने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को अपना यही मैसेज देके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। वो डाइस पे आए और अपने कुछ इजहार हमारे सामने पेश करें। जनाब मंसूर कादरी साहब, सदर मजलिस बिदर डिस्ट्रिक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब अलहाज खुदरतुल्लाह बेग साहब, कॉलेज के चेयरमैन जनाब रहमतुल्लाह बेग साहब और चीफ गेस्ट बैरिस्टर सैयद तलहा हाशमी साहब, मीडिया के साथियों, इस कॉलेज की प्रिंसिपल, स्टाफ और नौजवान बच्चों और नर्सरी, प्राइमरी और एलकेजी के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को आज के यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो रिपब्लिक डे है, ये
एक नेशनल फेस्टिवल है और ये बहुत ही अहम बात है कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क था जिसमें कई मज़ाहिब के मानने वाले लोग, कई ज़बानों के बोलने वाले लोग, कई किस्म की तहज़ीब को अपनाने वाले लोग, तरह तरह के लोग यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में सभी को एक कौमी धारा में पिरोने के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर कोई एक ऐसा आइन यानी दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन बने जो सभी के लिए काबिल कबूल हो। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदारत में ये जो दस्तूर बना, इस दस्तूर के बारे में मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो इसलिए है कि यहाँ तकरीबन हर आदमी जो इस मुल्क में रहता है वो अपने आप पर फ़ख्र करता है, वो चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो चाहे किसी भी ज़बान का जानने वाला और बोलने वाला हो, वो चाहे उसकी तहज़ीब कैसी ही हो, सभी लोग इस आइन पर फ़ख्र करते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ देर पहले बैरिस्टर सैयद तलहा हाशमी ने कुछ अहम बातें आपके सामने रखी और दस्तूर के कुछ आर्टिकल्स की अहमियत आपके सामने बताई। तो ये जो आर्टिकल 14 है, इसके तहत हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को, यहाँ रहने और बसने वाले तमाम सिटीजन्स को एक सा हक हासिल है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है और कोई मज़हब की कोई रवादारी इसके अंदर नहीं बरती जा सकती। तो ये तमाम लोगों को जहाँ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात करता है, वहीं पर इसी दस्तूर में एक आर्टिकल 25 है जो हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस देता है, जहां हम आर्टिकल 14 के तहत सब इक्वल हैं, सबके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर के हकदार हैं। वहीं पर आर्टिकल 25 में हमको इस बात का इख्तियार हासिल है कि हम जो चाहें मज़हब को इख्तियार करें, उसको प्रोपगेट करें, उसको प्रीच करें, उस पर अमल करें। और इसी आर्टिकल 25 के तहत मुसलमान अपनी मज़हबी रवादारी के एतबार से इस मुल्क में शानदार तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हिंदू अपनी मज़हबी रवादारी के मुताबिक अपना तौर तरीक़े के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्रिश्चियनों को भी और दीगर तमाम लोगों को भी इस बात का इख्तियार है कि वो जैसे चाहें इस मुल्क में रहें और जिस मज़हब को चाहें वो इख्तियार करें। आज के इस मौके पर मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत कर्नाटका ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने हाल ही में असम्बली में एक बिल लाया था। वो एंटी कन्वर्शन बिल उसको कहा जाता है, यानी धर्म परिवर्तन का जो है ना, जो एक बिल लाया उन्होंने। ये जो बिल जो कर्नाटका असम्बली में पेश किया गया, ये सरासर दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। दस्तूर के आर्टिकल 25 के तहत
जहां हमको इस बात की आज़ादी है कि हम जिस मज़हब को अच्छा समझते हैं वो अपना सकते हैं, मज़हब तब्दील कर सकते हैं, मज़हब पर अमल कर सकते हैं, मज़हब की जो है ना हम प्रचार कर सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में ये धर्म परिवर्तन का जो बिल लाया गया है, ये आर्टिकल 25 की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। तो इस किस्म की अगर काम हुकूमतें अगर करती हैं तो अवाम को इस बात का हक़ हासिल है कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें और उनके ख़िलाफ़ हम जो चाहें उनके साथ उनके ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। और जो है जब वक्त आता है, यानी जब दोबारा इलेक्शन आता है, तो उस वक्त हम उस ऐसी हुकूमतों को जो दस्तूर के मुताबिक इलेक्ट होती हैं और दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करती हैं, उनको जो है ना तख्ते से उतार कर तख़त से उतार कर तख्ते पर पहुंचा सकते हैं हम। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो उडुपी का जो वाक़या जिसका ज़िक्र तलहा हाशमी ने किया, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम तालिबात को उनके हिजाब को लेकर एक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बच्चियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोका और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुसलसल बच्चियां क्लास के बाहर बैठकर क्लास का लेसन सुन रही हैं। ये शर्म की बात है, न सिर्फ उनके लिए जो ये कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि ऐसे वाक़यात हमारे सामने रूनुमा होते हैं और हम समझते हैं कि ये वाक़या वहाँ का है और हमको यहाँ क्या करना चाहिए। दरअसल किसी भी गलत काम के ख़िलाफ़ जब आप आवाज़ उठाते हैं तभी जो है ना आप अपना हक़ अदा करते हैं। इसी बात के लिए मैं आज आप लोगों को इस बात की दावत देता हूँ कि जितने भी लोग ये इस किस्म की गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी हरकतें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठती है तो ये सभी का फरीज़ा है कि उठने वाली आवाज़ पर आप तमाम लोग एक हों और आगे बढ़कर ये आपका अपना काम है समझकर उसके साथ इन्वॉल्वमेंट रहें। ऐसा ही एक गैर दस्तूरी अमल NRC CAA बिल एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी पेश किया गया। ये जो है ना जो बिल था ये भी दस्तूर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत जब कहा जा रहा है कि सारे सिटीज़न्स को एक नज़र से देखा जाएगा, किसी किस्म का भेदभाव नहीं होगा, तो फिर CAA के क़ानून में जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने अमेंडमेंट करते हुए उसने अलग अलग मज़ाहिब का नाम लिया और मुसलमानों को उससे जो है ना अलग कर दिया उनको सिटीज़नशिप देने के बारे में। तो इस किस्म का जो गैर दस्तूरी अमल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में मुखालिफत हुई और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ और सबसे ज़्यादा एहतजाज हमारी बहनों ने किया। शाहीन बाग के नाम से जो एहतजाज दिल्ली में शुरू हुआ, वो एहतजाज सारे हिंदुस्तान में एहतजाज होता रहा और इस एहतजाज का नतीजा था कि हुकूमत लड़खड़ा रही थी, लेकिन ये जो कोरोना वायरस आया उसकी वजह से इस एहतजाज को ख़त्म करना पड़ा। हुकूमत ऐसा ही कुछ कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होता है, जो अवाम के ख़िलाफ़ होता है, तो अवाम को इस बात का हक़ भी हासिल है, ये भी उनका फंडामेंटल राइट है कि उसके ख़िलाफ़ ये लोग जो है ना उठ खड़े हों। और किसानों के ख़िलाफ़ जब बिल बनाया गया तो आपने देखा कि देश भर के किसान उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और एहतजाज करे और उनके पुरज़ोर एहतजाज के सामने ये मरकज़ी हुकूमत टिक नहीं सकी, आखिरकार उसको अपना क़ानून वापस लेना पड़ा। तो फिर एक बार आज के ये यौम जमहूरिया और रिपब्लिक डे की मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ हर कदम कदम की धरती बदले
भैया तेरे सबसे प्यारे